اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ 2 روز کے بعد اکرمہ کی بیوی بنو بکر کی بستی میں گئی اور اس آدمی سے ملی جس نے اسے اکرمہ کا پیغام دیا تھا۔ اکرمہ کے دوست نے پوچھا، کیا تو اکرمہ کے پاس جانے کو آئی ہے؟ اکرمہ کی بیوی نے کہا، میں اسے واپس لانے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس آدمی نے کہا، کیا تو نہیں جانتی کہ وہ آیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا؟ اکرمہ کی بیوی نے کہا، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری فریاد پر میرے شوہر کو معاف کر دیا ہے۔ اکرمہ کے دوست نے کہا، کیا تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا ہے؟ اکرمہ کی بیوی نے کہا، مان لیا ہے۔ اکرمہ کے دوست نے کہا، محمد نے تمہارے ساتھ سودا کیا ہوگا، اس نے تمہارے آگے یہ شرط رکھی ہوگی کہ تم اور اکرمہ اسلام قبول کر لو۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا، نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، میرے ساتھ ایسا کوئی سودا نہیں کیا، اور وہ ان میں سے نہیں جو سودا کر کے اپنی بات منوایا کرتے ہیں۔ میں وہاں اپنے شوہر کی جان بخشی کی فریاد لے کر گئی تھی۔ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں میں بڑی اچھی طرح جانتی تھی، لیکن اب میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو میں نے دل سے کہا کہ یہ وہ محمد نہیں جو کبھی ہم میں سے تھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس میں اب فریاد لے کر گئی۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں مجھے کوئی ایسی چیز نظر آئی جو کسی اور انسان میں نہیں ہوتی۔ مجھے ڈر تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں کہیں گے کہ یہ اکرمہ کی بیوی ہے، اسے یرغمال بنا کر رکھو تاکہ اکرمہ آ جائے اور اسے قتل کر دیا جائے، لیکن آپ علیہ السلام نے مجھے ایک مجبور عورت جان کر عزت سے بٹھایا۔ میں نے فریاد کی کہ فتح آپ کی ہے، میرے بچوں کو یتیم نہ کریں، میرے شوہر کی بد عہدی کی سزا مجھے اور میرے بچوں کو نہ دیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میں نے اکرمہ کو معاف کیا اور معلوم نہیں وہ کون سی طاقت تھی جس نے مجھ سے کہلوایا کہ میں نے تسلیم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب میں اس خدا کو مانتی ہوں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت دی۔ اکرمہ کے دوست نے کہا، اور تم مسلمان ہو گئی؟ اکرمہ کی بیوی نے کہا، ہاں، میں مسلمان ہو گئی، مجھے اس کے پاس لے چل میرے شوہر کے دوست، میں اسے واپس لاؤں گی۔ اکرمہ کے دوست نے کہا، میں دوستی کا حق ادا کروں گا، چل میں تیرے ساتھ یمن چلتا ہوں۔ کافی دنوں کے بعد اکرمہ اپنی بیوی کے ساتھ مکے میں داخل ہوا۔ اپنے گھر جانے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے اپنے کیے کی معافی مانگ کر اسلام قبول کر لیا۔ اسی روز صفوان بھی آ گیا، وہ بھاگ کر جدہ چلا گیا تھا۔ ایک دوست اس کے پیچھے گیا اور اسے کہا کہ وہ سالاری رتبے کا جنگجو ہے اور اس کی قدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جان سکتے ہیں۔ اسے یہ بھی کہا گیا کہ قبیلہ قریش ختم ہو چکا ہے۔ صفوان تلوار کا دھنی اور نامور سالار تھا، وہ اپنے دوست کے ساتھ مکہ آ گیا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہند ایک ایسی عورت تھی جس کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ اسلام قبول کرے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دے رکھا تھا اور وہ روپوش تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ہند کو جب پتہ چلا کہ اکرمہ اور صفوان نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ سامنے آ گئی، یہ جانتے ہوئے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جا پہنچی۔ آپ علیہ السلام نے اسے معاف کر دیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ مکہ کے ارد گرد دور اور نزدیک کچھ قبائل تھے، ان میں بعض بت پرست تھے اور بعض توہمات کو عقیدہ بنائے ہوئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجے کہ وہ اللہ کا سچا دین قبول کر لیں۔ پیغام لے جانے والے فوجی تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ کسی پر تشدد نہ کیا جائے اور جنگی کارروائی سے گریز کیا جائے۔ مکہ کے جنوب میں تہامہ کا علاقہ ہے جہاں جنگجو قبائل بکھرے ہوئے تھے، ان کے متعلق خدشہ تھا کہ لڑنے پر اتر آئیں گے، اس لیے اس علاقے میں فوج کا ایک دستہ بھیجا گیا اور اس کی کمان خالد رضی اللہ عنہ کو دی گئی۔ تمام کا تمام دستہ گھڑ سوار تھا، اس میں بنو سلیم کے آدمی بھی تھے اور مدینہ کے بھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو مکہ سے تقریباً 50 میل دور ایک مقام تک جانا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے سوار دستے کے ساتھ روانہ ہو گئے، ان کی منزل 50 میل دور تھی۔ بمشکل 15 میل دور رہ گئے ہوں گے کہ ایک مشہور جنگجو قبیلے بنو جزیمہ کے آدمیوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستے کا راستہ روک لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ بنو جزیمہ باقاعدہ لڑائی کے لیے نکل آئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، ہم لڑنے نہیں آئے، ہم دعوت دینے آئے ہیں کہ اسلام قبول کر لو۔ بنو جزیمہ کی طرف سے جواب آیا، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، ہم دھوکہ کھانے نہیں آئے، اگر تم مسلمان ہو چکے ہو تو تلواریں اور برچیاں پھینک دو۔ بنو جزیمہ کی طرف سے کسی نے للکار کر کہا، خبردار بنو جزیمہ،
इसे मैं जानता हूँ, ये मक्का के अल वलीद का बेटा खालिद है। इस पर एतबार न करना, हथियार डाल दोगे तो ये हम सबको कत्ल करवा देगा, हथियार न डालना। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, खुदा की कसम मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म न मिला होता कि जंग न करना तो मैं देखता कि तुम हथियार डालते हो या नहीं। हम दोस्त बनकर आए हैं, हम तुम पर अल्लाह का दीन जबरदस्ती ठूंसने नहीं आए। हमें दोस्त समझो और हमारे साथ आ जाओ। बनु जजीमा की तरफ से आवाज आई, अहले कुरैश की क्या खबर है? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मक्का चल कर देखो, अबू सुफियान, इकरिमा और सफवान इस्लाम कबूल कर चुके हैं। बनु जजीमा ने हथियार डाल दिए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु घोड़े से उतरकर आगे बढ़े और बनु जजीमा के सरदार से गले मिले। पूरे कबीले ने इस्लाम कबूल कर लिया था। मुसलमानों को मक्का एक मरकज की हैसियत से मिल गया। ये सूरज की मानंद था जिसकी किरणें दूर दूर तक फैलने लगी, लेकिन इस्लाम की दुश्मन कुव्वतें यकजा हो रही थी। ताइफ एक मकाम है जो मक्का मुअज़्ज़मा से चंद मील दूर है। जनवरी 630 ईस्वी शवाल 8 हिजरी की एक रात वहाँ जश्न का समा था। फजा शराब की बू से बोझल और रात मखमूर थी। रक्स के लिए ताइफ के इर्द गिर्द के इलाके की चुनी हुई नाचने वालियां आई हुई थी। उनके रक्स और हुस्न ने मेहमानों को मदहोश कर दिया। मेहमान मक्का के शुमाल मशरकी इलाके के मशहूर जंगजू कबीले हवाजन के सरकर्दा अफराद थे। उनके मेजबान ताइफ और गिरदोनिवाह में फैले हुए कबीला सकीफ के सरदार थे, जिन्होंने अपने मेहमानों पर अपनी अमारत और फयाजी और कुशादा ज़र्फी का रोब जमाने के लिए इतनी शाहाना ज़ियाफत और इतने शानदार जश्न का एहतमाम किया था। दो लड़कियां रक्स के कमाल दिखा रही थीं कि मेजबान कबीले का सरदार मालिक बिन औफ उठ खड़ा हुआ और उसने ताली बजाई। साज खामोश हो गए। नाचने वालियां बुत बन गई और उनकी नजरें मालिक बिन औफ पर जम गई। मेहमानों पर सन्नाटा तारी हो गया। ऐसा लगता था जैसे रात के गुजरते लम्हों का काफिला रुक गया हो। हर कोई मालिक बिन औफ की तरफ देख रहा था। मालिक बिन औफ की उम्र 30 साल थी। रक्स और मैनोशी की महफिलों में वो अय्याश शहजादा था, लेकिन मैदान जंग में वो आग का बगूला था। वो सिर्फ तेगज़नी, तीरंदाजी और घुड़सवारी में ही महारत नहीं रखता था, बल्कि वो फन हर्ब व ज़र्ब का भी माहिर था। इन्हीं औसाफ की बदौलत वो कबीले का सालार था। जंग के मामले में वो इंतहा पसंद था। यूं लगता था जैसे ठंडे दिल से सोचना उसे आता ही नहीं। उसकी जंगी चालें उसके दुश्मन के लिए बड़ी खतरनाक होती थी। कबीले कुरैश में जो हैसियत कभी खालिद बिन वलीद को हासिल थी, वैसा ही दबदबा मालिक बिन औफ का अपने कबीले में था। मालिक बिन औफ ने रक्स रुकवा कर मेजबानों और मेहमानों से खिताब किया, हमने बहुत खा लिया है, हम शराब के मटके खाली कर चुके हैं, हम थिरकती हुई जवानियों से लुत्फानंदोज हो चुके हैं। क्या हमारे मेहमानों ने ये नहीं सोचा कि इस ज़ियाफत और जश्न की तकरीब क्या है? मैंने तुम्हें कोई खुशी मनाने के लिए इकट्ठा नहीं किया। ऐ अहले हवाज़न, मैंने तुम्हारी गैरत को जगाने के लिए तुम्हें अपने यहाँ बुलाया है। कबीला हवाज़न के एक सरदार ने कहा, हवाज़न की गैरत सोई कब थी मालिक बिन औफ? बता, हमारी गैरत को किसने ललकारा है? मालिक बिन औफ ने कहा, मुसलमानों ने, मोहम्मद ने। क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानते? क्या तुम भूल गए हो उसको जो अपने चंद एक साथियों के साथ मक्का से भागकर यसरब चला गया था? 2-3 आवाजें उठी, जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। वो अपने आप को खुदा का नबी कहता है। एक और आवाज उठी, हम उसे नबी नहीं मानते। कोई नबी होता तो हम में से होता, जो अहले सकीफ है, हवाज़िन के कबीले से होता। मालिक बिन औफ ने कहा, वो नबी है या नहीं? मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जिस मक्का से वो गया था, उस मक्का का अब वो हाकिम है। मक्का में उसका हुक्म चलता है और उसकी जंगी ताकत बढ़ती जा रही है। कबीले कुरैश उसके आगे हथियार डाल चुका है और उसके मजहब को कबूल करता चला जा रहा है। अबू सुफियान, इकरिमा और सफवान जैसे जाबिर जंगजू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहब कबूल कर चुके हैं। खालिद बिन वलीद ने पहले ही ये नया मजहब कबूल कर लिया था। मुसलमानों ने मक्का में तमाम बुत तोड़ डाले हैं। किसी और ने कहा, अहले कुरैश को अपनी गैरत और अपने मजहब का पास होता तो वो अपनी तलवारें अपने पेटों में घोंप लेते। मालिक बिन औफ ने कहा, अब सितारों से भरा ये आसमान देखेगा कि हवाज़िन और सकीफ को अपनी गैरत का कितना पास है। कबीला हवाज़िन के एक सरदार ने कहा, क्या तू ये चाहता है कि हम में से कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे? अगर तू यही कहना चाहता है तो ये काम मेरे सुपुर्द कर दे। मालिक बिन औफ ने कहा, अब मोहम्मद को कत्ल कर देने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसे कत्ल कर दोगे तो उसके पैरोकार उसे अपने दिलों में जिंदा रखेंगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि अब वो एक आदमी के कत्ल से वो उस रास्ते से नहीं हटेंगे जिस पर उन्हें डाल दिया गया है। हवाज़िन के एक सरदार ने कहा, कहते हैं उसके हाथ में कोई जादू है, वो जिस पर निगाह डालता है वो उसका मोती हो जाता है। हवाज़िन के एक और सरदार ने अपनी तलवार के दस्ते पर हाथ रख कर कहा,
जहाँ तलवार चलती है वहाँ कोई जादू नहीं चल सकता। मालिक तू आगे बोल, क्या कहता है, हम तेरे साथ हैं। मालिक बिन औफ ने कहा, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम को न रोका तो ये सैलाब की तरह बढ़ता हुआ हम सबको बहा ले जाएगा। न हवाजिन रहेंगे, न सकीफ का वजूद होगा। कबीला कुरैश को महकूम बनाने वालों को हम मक्का के अंदर ही खत्म करेंगे। क्या तुम महकूम बन जाने का मतलब समझते हो? मालिक बिन औफ ने सबकी तरफ देखा और बोला, अगर नहीं समझते तो मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने पीछे देखा। मालिक बिन औफ के पीछे मेहमानों में एक मुअम्मर सफेद रीश बैठा था। उसका रंग दूसरों की निस्बत साफ और सफेदी माइल था। वो ज़ईफ इतना था कि उसका सर हिलता था और कमर में हल्का सा खम था। उसके हाथ में अपने कद जितना लंबा असा था। कंधों से टखनों तक चुगा बताता था कि वो कोई आलिम या मजहबी पेशवा है। मालिक बिन औफ के इशारे पर वो उठा और मालिक के पास आया। बूढ़े ने कहा, तुम पर उसकी रहमत हो जिसने तुम्हें पैदा किया है, और वो देवता तुम्हारे बच्चों के मुहाफिज हों जिनकी तुम पूजा करते हो। तुम महकूमी और गुलामी का मतलब नहीं समझते तो मुझसे पूछो। मेरी 4 जवान बच्चियां मुसलमानों की लौंडियां हैं और मेरे 2 जवान बेटे मुसलमानों के गुलाम हैं। वो तेगजन और शहसवार थे, लेकिन अब उन्हें तलवार हाथ में लेने की और घोड़े पर सवार होने की इजाजत नहीं। हमें घरों से निकाल दिया गया है। क्या तुम्हें याद नहीं कि कुरैश ने मदीना का मुहासरा किया था तो मुसलमानों ने इर्द गिर्द खंदक खोद ली थी। कुरैश उस खंदक को फलांग नहीं सके थे। फिर इस कदर तुंदो तेज तूफान आया कि कुरैश जो पहले ही बददिल हो चुके थे बिखर गए और मक्का को वापस चले गए। जब मुसलमानों के सर से खतरा टल गया तो उन्होंने उन यहूदियों पर हल्ला बोल दिया जो उनके साथ मदीना में अमन से रहते थे। उन यहूदियों को उन्होंने कत्ल कर दिया और उनकी औरतों को और उनके बच्चों को आपस में बांटकर उन्हें लौंडियां और गुलाम बना लिया। कबीला सकीफ के एक सरकर्दा आदमी ने बुलंद आवाज से कहा, ऐ बुजुर्ग, अगर तू यहूदी है तो क्या हमने गलत सुना था कि तेरे कबीले ने मुसलमानों को धोखा दिया? बूढ़े ने कहा, तुमने जो सुना दुरुस्त सुना। हमारा धोखा कामयाब नहीं हुआ था। हम मुसलमानों की पीठ में खंजर घोंपना चाहते थे, लेकिन कुरैश पीठ दिखा गए। मुसलमानों को धोखा देकर कमजोर करना हमारा फर्ज था, लेकिन मुसलमानों की तलवारों ने हमें कमजोर कर दिया। कबीला सकीफ के एक सरदार ने कहा, तू जो बनी इसराइल से है, क्या हमें उकसाने आया है कि हम मुसलमानों से तेरे कबीले के खून का इंतकाम लें? एक और ज़ईफुल उम्र शख्स उठ खड़ा हुआ। उसका नाम दुरैद बिन अल-सिम्मा था। उसका नाम तारीख में तो मिलता है, लेकिन ये पता नहीं मिलता कि वो कबीला हवाज़िन से था या कबीला सकीफ से। दुरैद बिन अल-सिम्मा ने गरज कर कहा, खामोश रहो, हम बनी इसराइल के खून का इंतकाम नहीं लेंगे। क्या तुम अभी तक शक में हो? क्या तुम अभी तक नहीं समझे कि हमने मुसलमानों पर हमला करके उनका खून अपनी तलवारों को न पिलाया और उनके जख्मियों को घोड़ों तले न रौंदा तो वो हमें भी कत्ल करके तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारी बहनों को और तुम्हारी बीवियों को अपनी लौंडियां बना लेंगे और हमारे बच्चे उनके गुलाम होंगे। इससे पहले कि उनके घोड़े ताइफ की गलियों में हिनहिनाएं, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हमारे घोड़े उनकी लाशों को मक्का की गलियों में कुचलते फिरें? मालिक बिन औफ ने जोश से लरसती हुई आवाज में कहा, बनी इसराइल का ये बुजुर्ग हमारी पनाह में आया है। इसने अपने कबीले का जो अंजाम बताया है, मैं तुम्हें उसके अंजाम से बचाना चाहता हूँ। उठो और लात के नाम पर हल्फ उठाओ कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके तमाम पैरोकारों को, जिन्होंने मक्का के तमाम बुत तोड़ दिए, खत्म करके अपनी औरतों को अपने मुंह दिखाएंगे। उस जमाने में जब इस्लाम की किरणें मक्का से फैल रही थी, अरब में बुत परस्ती आम थी। वो खुदा को भी मानते थे, लेकिन खुदा तक रसाई हासिल करने के लिए वो बुतों के आगे हाथ फैलाते थे। उनका अकीदा था कि बुतों को राजी किए बगैर खुदा को राजी नहीं किया जा सकता। बुतों की खुशनुदी के लिए वो कुछ रस्में अदा करते थे। ताइफ के इलाके में जिस बुत को पूजा जाता था उसका नाम लात था, जो इंसानी या हैवानी शक्ल का नहीं था। वो बहुत बड़ा पत्थर था जिसे चट्टान कहा जाता था। ये चट्टान बाकायदा मुरब्बा शक्ल की थी। बाज मौरखों ने लिखा है कि ये मुरब्बा शक्ल का कुदरती तौर पर बना हुआ चबूतरा था, जिस पर शायद किसी जमाने में कोई बुत रखा गया हो। लेकिन तुरुए इस्लाम के दौर में ये सिर्फ चबूतरा था और इर्द गिर्द के कबाइल उसी को पूजते थे। जनवरी 630 ईस्वी की उस रात जब कबीला हवाज़िन के सरदार कबीला सकीफ की दावत पर ताइफ आए और मालिक बिन औफ और दुरैद बिन अल-सिम्मा उन्हें मक्के पर हमले के लिए उकसा रहे थे, हवाज़िन के एक सरदार ने मशवरा दिया कि काहिन को बुलाकर फाल निकलवाई जाए कि हमारा हमला कामयाब होगा कि नहीं। ये फाल तीरों के जरिए निकाली जाती थी, जिसे अज़लाम कहते थे। बहुत से तीर इकट्ठे रखे होते थे, किसी पर हाँ लिखा होता था, किसी पर नहीं। बुत का कोई मुजावर या काहिन मजहबी पेशवा उस तरकश से एक तीर निकालता और देखता कि उस पर हाँ लिखा है या नहीं। ये फाल का जवाब होता। मुजावर की निस्बत काहिन को बेहतर समझा जाता। काहिन दानिशमंद होते थे,
उनके पास पुरअसर और दिल में उतर जाने वाले अल्फाज का जखीरा होता था और उनके बोलने का अंदाज तो हर किसी को मुतासिर कर लेता। काहिन फाल निकाले बगैर गैब की खबरें दिया करते और लोग उन्हें सच माना करते। अगली सुबह हवाजिन और सकीफ के सरदार एक काहिन के सामने बैठे हुए थे। उनमें से किसी ने अभी बात भी नहीं की थी कि काहिन बोल पड़ा। अगर मैं गैब की खबर दे सकता हूँ और आने वाले वक्त में भी झांक कर बता सकता हूँ कि कैसा होगा और क्या होगा, तो क्या मैं ये नहीं बता सकूंगा कि तुम्हारे दिलों में क्या है? उसने कहा, तुम अपनी जबानों को साकिन रखो और मेरी जबान से सुनो कि तुम क्या कहने आए हो। तुम जिस दुश्मन पर हमला करने जा रहे हो वो यूं समझो कि सोया हुआ है। उसने मक्का पर कब्जा किया है और वहाँ के इंतजामात सीधे कर रहा है। वो अपनी बादशाही की बुनियादें पक्की कर रहा है। मक्का में उसके दुश्मन भी मौजूद हैं और किसी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहब कबूल नहीं किया। दुरैद बिन अस्सिम्मा ने कहा, मुकद्दस काहिन, हमें ये बता कि हम मोहम्मद को खबर होने से पहले उसको कैसे दबोच सकते हैं? क्या हमारा अचानक हमला मक्का के मुसलमानों को घुटनों बिठा सकेगा? काहिन ने आसमान की तरफ देखा, कुछ बड़बड़ाया और बोला, आने वाले वक्त के पर्दों को चाक करके देखा है। तुम्हारा हमला अचानक होगा। मुसलमानों को उस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारी तलवारें उन्हें काट रही होंगी। कौन है जो बरसती तलवारों में संभल कर अपने आप को बचाने की तरकीब कर सकता है? यही वक्त है, यही मौका है। मुसलमान अगर संभल गए तो तुम अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकोगे। फिर मुसलमान तुम्हारे घरों तक तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हारे खजानों को और तुम्हारी औरतों को तुम्हारी लाशों के ऊपर से गुजार कर अपने साथ ले जाएंगे। अज़लाम की जरूरत नहीं। लात ने इशारा दे दिया है और पूछा है कि मुझे पूजने वालों की तलवारें अभी तक न्यामों में क्यों हैं? एक सरदार ने पूछा, कोई कुर्बानी? काहिन ने कहा, हाम। एक हाम अगर है तो दे दो, नहीं है तो अपने कबीले से कहो कि पीठ न दिखाएं, अपने खून की और अपने जानवरों की कुर्बानी दें। हाम की तलाश में वक्त जाया न करो। जाओ, मैंने तुम्हें खबर दे दी। मक्का में मुसलमान दूसरे कामों में मसरूफ हैं, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं। ये वक्त फिर नहीं आएगा। हाम उस ऊंट को कहते थे जिसकी चौथी नस्ल पैदा हो जाती थी। उसे ये लोग अपने बुत के नाम पर खुला छोड़ देते। उस ऊंट को मुतबर्रक समझकर उस पर न कोई सवारी कर सकता था, न उससे कोई और काम लिया जाता। उस पर खास निशान लगा दिया जाता। उसे जो कोई देखता उसका एहतराम करता और उसे अपने खाने की चीज खिला देता। जब हवाजिन और सकीफ के सरदार काहिन की आशीर्वाद लेकर चले गए तो काहिन अंदरूनी कमरे में चला गया। वहाँ वो बूढ़ा यहूदी बैठा था जिसे गुज़श्ता रात ज़ियाफत के दौरान मालिक बिन औफ ने इशारे से कहा था कि वो सबको बताए कि महकूमी और गुलामी क्या होती है। काहिन ने उसे कहा, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब ये लोग मक्का की तरफ कूच में ताखीर नहीं करेंगे। बूढ़े यहूदी ने कहा, क्या इन्हें कामयाबी हासिल होगी? काहिन ने कहा, कामयाबी का इन्हिसार इनके लड़ने के जज्बे और अक्ल पर है। अगर इन्होंने सिर्फ जोश और जज्बे से काम लिया और अक्ल को इस्तेमाल न किया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्करी काबिलियत इन्हें बहुत बुरी शिकस्त देगी। मेरा इनाम कहाँ है? बूढ़े ने कहा, तुम्हारा इनाम साथ लाया हूँ। और उसने एक आवाज लगाई। दूसरे कमरे से एक हसीन लड़की आई। बूढ़े यहूदी ने अपने जोए के अंदर हाथ डालकर सोने के 2 टुकड़े निकाले और काहिन को दे दिए। बूढ़े ने कहा, मैं कल सुबह इस लड़की को ले जाऊंगा। काहिन ने कहा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे कहने पर उन लोगों को कहा है कि फौरन हमला करें, लेकिन उन सरदारों में समझबूझ है, वो हालात को समझ लेते हैं। उनका बूढ़ा सरदार दुरैद बिन अस्सिम्मा पहले से जानता था कि मुसलमान मक्का में अभी जमकर नहीं बैठ सके। उनके सामने और बहुत से मसले हैं, उन पर हमले के लिए यही वक्त मौजू है। हवाजिन और सकीफ के सरदार अपने इरादे की तस्दीक के लिए मेरे पास आए थे। अच्छा हुआ कि उनसे पहले तुम चोरी छुपे मेरे पास आ गए। बूढ़े यहूदी ने कहा, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मुसलमानों को खत्म किया जाए।